Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कस करी गई थी इन योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन टुडे 17th of May 2021 को. So let's begin with the first word. Your first pair of words for today is सिनेस्टर प्लॉट. सिनेस्टर प्लॉट का मतलब क्या होता है? थ्रेटनिंग और सजेस्टिंग इविल और हार्म. मतलब कोई ऐसा प्लॉट क्रिएट करना, ऐसा कोई प्लान क्रिएट करना जो कि बहुत ज़्यादा एनवियसनेस जिसमें भरी हो, हार्मफुल हो, इविल हो एंड थ्रेटनिंग हो. ठीक है. सो थ्रेटनिंग और सजेस्टिंग इविल और हार्म, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिनेस्टर प्लॉट. The plot which actually creates evil or harm. Next word you have here is incarceration. Incarceration is a noun. Incarceration का मतलब क्या होता है? The act of putting or keeping someone in prison. किसी को बांध के रखना, prison में रखना. ठीक है. So put someone into prison or keep someone into प्रिजन. किसी को बांध के रखना, कैप्टिव रखना. ठीक है. इम्प्रिजन रखना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कैप्टिविटी एंड कन्फाइनमेंट. टू सीज समवन. सो द एंटोनिम विल बी फ्रीडम और रिलीज. वी कैन कॉल द एंटोनिम्स आर. सो द रिकॉर्ड ऑफ हिज कंडक्ट डिमांड्स इनकार्सरेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक. उसके जो भी कंडक्ट्स है, उसकी काम है, वो यही डिमांड करता है दैट ही शुड बी put into the prison to protect the public. So there we use the word incarceration, to put someone into prison. Next word is door. Door is an adjective. door का मतलब होता है relentlessly severe in manner. मतलब अगर आपका behavior या manner बहुत ज़्यादा severe है, बहुत ज़्यादा harsh है, rude है, there we use the word door. So इसके synonyms क्या हो जाएंगे? To be very stern and unfriendly. And the antonyms are while you are cheerful and friendly. Behave in a very calm way. So the social reformer of the past is depicted as a dog. So social reformer के जो भी past है उसे depict क्या होता है? That he is a dog. He is very stern, unfriendly. Next word is abdicate. Abdicate is a verb. Abdicate का मतलब क्या होता है? Renounce one's duty. While one is fed up with his duty, जब कोई fed up हो जाता है अपनी ड्यूटी से और वो क्विट कर देता है, अपनी ड्यूटी को छोड़ देता है, रिज़ाइन कर देता है, at that time we use the word abdicate, to renounce, to resign one's duty, or we can say one's on power authority. So इसके synonyms क्या हो जाएंगे? To resign, quit या फिर give up कर देना. And the antonyms are accept or take on. While we accept or take some responsibilities or duty on our own self, there we use the antonyms. So the king decided to abdicate in favor of his son. कि जो king है उसने decide किया है कि वो अपना जो भी throne है उसे quit कर देगा, उससे resign हो जाएगा, just because he wants his son to be a king. So there we use the word abdicate. Next word is rigged. Rigged is a verb. Rigged का मतलब होता है manipulated or controlled by deceptive or dishonest means. So किसी को manipulate करना, control करना by deceptive और dishonest means, मतलब चालाकी से trick करके किसी को manipulate करना और अपने control में करना. So इसके synonyms क्या हो जाएंगे? To trick somebody or tricked or manipulate. Manipulated and tricked are synonyms. And the antonym is uncover. While you unfold the reality, while you are not manipulating the next, while you are not deceptive the next. ठीक है. जब आप किसी को डिसेप्ट नहीं करते हो, जब आप किसी से डिसऑनेस्टी के साथ डिसऑनेस्ट तरीके से किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हो, अनफोल्ड कर देते हो, सारी चीज़ों को अनफोल्ड करते हो, अनकवर is what we call the antonyms of the word rigged. So their forefathers rigged the mines on the planet to explode. कि उनके जो forefathers थे, they rigged, they manipulated or controlled by deception the mines on the planet to explode.
So there we use the word rigged. नेक्स्ट वर्ड इज इंटररेग्नम. इंटररेग्नम का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और गैप इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्डर. किसी भी गवर्नमेंट जो भी वर्क्स होते हैं उनमें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल ऑर्डर में कोई भी डिसकंटिन्यूटी होती है, कोई भी गैप होता है, ठीक है, कोई भी फासला हो जाता है, या फिर कोई भी आप बोल सकते वेकेशन जैसी चीज़ हो जाती है. सो दे वी यूज द वर्ड इंटररेग्नम. सो द गैप इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इट्स सोशल ऑर्डर. नेक्स्ट वी हैव पेयर ऑफ वर्ड्स इज ग्लॉस्ड ओवर. ग्लॉस्ड ओवर का मतलब क्या होता है? टू ट्रीट और डिस्क्राइब समथिंग एज इफ इट वर नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब किसी चीज़ से को ऐसे ट्रीट करना या इस तरीके से किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना कि वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इग्नोरेंट है, अवॉइडेबल है. ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड ग्लॉस्ड ओवर. नॉट इम्पॉर्टेंट, इग्नोरेबल, आप इसको बोल सकते हो अवॉइडेबल. नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज बैनल. बैनल विच इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब क्या होता है बैनल का? सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग. मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नहीं होती है, अपनी ओरिजिनलिटी से दूर होती है, फेक आप इसको बोल सकते हो, जो कि कभी बार फैडेड अप भी हो जाती है, बोरिंग भी लगती है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू बी वेरी कॉमन एंड वॉर्न आउट. ठीक है. एंड द एंटोनिम इज ओरिजिनल. कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती है, ठीक है, ऑथेंटिक. सो सॉन्ग्स विद बैनल. सॉन्ग्स विद हम बोल सकते हैं इसको नॉट हैविंग ओरिजिनल sounds, so repeated words. So there we use the word banal while the things are not original or boring. Next word is Shanghai. Shanghai, which is a verb. Shanghai का मतलब क्या होता है? Trick someone into a place or position or into doing something. मतलब forcefully tricky तरीके से या किसी को मैनिपुलेट करके किसी भी इंसान को ऐसी जगह पे पहुंचा देना या ऐसी पोजीशन पे उसे काम करने के लिए मजबूर करना जो कि वो नहीं करना चाहता. ठीक है. सो टू ट्रिक समवन और टू मैनिपुलेट समवन इनटू अ प्लेस और पोजीशन और इनटू डूइंग समथिंग. एक ऐसे प्लेस या पोजीशन पे या ऐसे काम में लगा देना किसी पर्सन को जिसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसे फोर्स किया जाता है, ट्रिक किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है. सो देयर वी यूज द वर्ड शंघाई. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रिम्प्ड या फिर सीज्ड. एंटोनिम्स लिबरेट या फिर रिलीज, टू फ्री, लेट गो. सो एंग्री एट बीइंग इफेक्टिवली शंघाइड टू अ डेंजरस मिशन. कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री है बिकॉज somebody put him into dangerous mission. ठीक है. सो दे वी यूज वर्ड शंघाइड. शंघाइड. Next word is rapprochement. Rapprochement, which is a noun. Rapprochement का मतलब क्या होता है? A situation in which the relationship between two countries or groups of people becomes more friendly after a period of time when they were enemies. जब दो कंट्रीज, दो ग्रुप्स, दो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के एनिमीज रहे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे या कुछ ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे वो रिकन्सील कर लेते हैं, एक दूसरे से फ्रेंड बन जाते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे हम रेप्रोचमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. सो एक ऐसी सिचुएशन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल बिकम मोर फ्रेंडली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे वर एनिमीज. ठीक है. बहुत लंबे टाइम की दुश्मनी को ख़त्म करके एक दूसरे से रिकन्सील कर लेना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिकन्सिलेशन एंड हार्मोनाइजेशन. सो एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट और ट्रबल. सो आई होप फॉर द रप्रोचमेंट बिटवीन आर टू कंट्रीज़, कि अपनी टू कंट्रीज़ के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए, सब कुछ हार्मोनाइज्ड हो जाए, तो उसके लिए आई होप. Another word is boomerang. Boomerang plays both the role in a sentence as a noun or as a verb. So boomerang basically as a noun अगर हम इसको देखें तो इस इक्विपमेंट को बोला जाता है. ठीक है. इसको बोला जाता है boomerang.
इसका मतलब क्या होता है? एज अ वर्ब रिकॉइल ऑन द ओरिजिनेटर, रिकॉइल ऑन द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर पे रिकॉइल होना कोई भी चीज़, ठीक है। सो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बैकफायर या फिर कोई भी चीज़ रिवर्स होना। बेसिकली इस इक्विपमेंट कोई भी इसीलिए थ्रो किया जाता है ताकि जिसने इसको थ्रो किया है, तो द पर्सन हु थ्रोज इट, थ्रोअर हम इसको बोल सकते हैं, उसके पास ये वापस घूम के आ जाए, ठीक है। सो इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, इसको बैकफायर भी बोल सकते हैं। सो एंटोनिम क्या हो गए इसके? वॉश आउट या फिर फोल्ड। सो द प्लान हैड अ बॉमरंग इफेक्ट, ये जो प्लान जो भी कुछ किसी ने बनाया है, इट हैज़ बॉमरंग इफेक्ट, मतलब ये खुद ही पलट के उसी प्लॉटर पे आके गिरा, ठीक है। सो देयर वी यूज द वर्ड बॉमरंग्स. So these are the words for today. Thank you so much.